সিআরপিএফের চতুর্থতম মিলনোৎসব উদযাপিত হল খড়দার ভাষা উদ্যানে। উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফের অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি তথা অন্তর্রাষ্ট্রীয় জিমন্যাস্টিক খেলোয়াড় বলরাম শীল, এক্স সিএপিএফের কেন্দ্রীয় কমিটির কোঅর্ডিনেটর কিরণ পাল সিং, সিএপিএফের এক্স এমপ্লয়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের সভাপতি সুজয় মণ্ডল। কি দাদা, ঠিকানা তার একটু জেনে এসো। ঠিকানা চাও? বলছি শোনো, আমরা তলার মোড়ে 3 বছর আমি তখন অষ্টাদশীর ছন্দে কেঁপেছি, ধরা পড়েছিল Respected ladies and gentlemen and my friends, 4 বছর হচ্ছে কিন্তু আমি প্রথমবার আসতে এখনো চাকরি করছি, 2 মাস বাকি আছে। 31 মার্চ আমার সুপারনেশন। প্রেজেন্টলি আমি নাগাল্যান্ডে ছিলাম, খালি প্রোগ্রামটার জন্যই আমাকে নাগাল্যান্ড থেকে আসতে হয়েছে এখানে। তো শুরু করার আগে हिंदू को मेरा नमस्कार, मुस्लिम को मेरा सलाम, ईसाई को गुड आफ्टरनून, सरदारों को सत श्री अकाल। मैं आप लोगों का प्यारे प्यारे मिस्टर एनडी पॉल। मैं आपसे आपका सामने कुछ ऐसे करके दिखाता हूँ। आज सभी परिवार लेके आया है। করতে পারেনি বলেন, আপনারা ওই লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমি ওই লোকটাকে দেখার জন্য শুধু এসেছি। তাছাড়া যতজন সম্বর্ধনা আপনারা পেয়েছেন সবাই আমার থেকে অনেক, আমার বয়স 72 পারে 73 চলেছে। অতএব আমি মরার পথে, তাও মরবো না, তাও মরবো না। এখানে আসার পরে 2 ছেলে অনেক শিখা পুরে তবে এমন প্রদীপ জ্বলে, অনেক কথা মরণ হলে হৃদয়ে কথা বলে। যখন আমি দিল্লিতে আন্দোলন করতে যেতাম তখন কিন্তু ফ্যামিলিরা কেউ যেত না, তখন আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে গেছিলাম নিজে, এবং স্টেজে তুলে অনুরোধ করেছিলাম যত সিএপিএফের এক্সম্যান আছে এবং যতজন ফোর্সের আমাদের সিএপিএফের সিআরপিএফ, বিএসএফ, আইটিবিপি, এসএফপি
আসাম রাইফেল যতজন আছে তাদের ফ্যামিলিরাও এই প্রোগ্রামে আসা দরকার, তবেই কিন্তু সরকার আমাদেরকে ধ্যান দেবে এবং আমাদের কথা কিন্তু শুনবে, নাহলে কোনো দিন আমাদের কথা শুনবে না। সেই জন্য আমাদের লড়াই। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, বেশি কিছু বক্তব্য বিলম্বিত করবো না। ডিআইজি সাহেব এসেছেন, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিরণ পাল স্যার এসেছেন, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওয়েলকাম। ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে এসেছেন, আমরা অত্যন্ত খুশি, খুব ভালো লাগছে। আপনাদেরকে সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম। আর বলতো, অনেকে দাদা বলতো। আমরা একটা ছোট্ট একটা ফ্যামিলির মতো আমরা থাকতাম মধ্যপ্রদেশ নিমাচে। তারপর সবাই এদিকে সেদিকে চলে গেছে, অনেক রিটায়ার চলে গেছে, অনেকে। আমিও এখন অবসরপ্রাপ্ত এক্স ডিআইসি, কিন্তু এখানে আমার সল্টলেকে একটা ফ্ল্যাট আছে, এখানেও থাকি। এই জন্য আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল যে এক্স প্যারামিলিটারি আর্মড ফোর্সের আমি চেয়ারম্যান আছি। সেটা আমাকে এই যে অসীম দেবনাথ সে প্রপোজ করে, সে আমাকে এই পদ দিয়েছে, এই জন্য ওদেরকে ধন্যবাদ। সেন্ট্রাল কোচ ম্যানেজার এবং আমি নিজেও অনেকবার ইন্টারন্যাশনাল জিমনাস্টিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছি অনেক কান্ট্রিতে। 82 এশিয়াড দিল্লি, 86 সিউল এশিয়াড, 84 মস্কো, 85 রোমানিয়া, 86 তেহরান। এভাবে 7 বার আমি ইন্টারন্যাশনাল জিমনাস্টিক করেছি। ইন্ডিয়াতে অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, অনেক মেডেল পেয়েছি। তখন সেন্ট্রাল ফুটবল টিম আমাদের সঙ্গেই থাকতো, একই ব্যারেকে, একই সঙ্গে আমরা রোজ সকাল বিকাল ওদের সঙ্গে দেখা হতো। সেন্ট্রাল টিমের সবাই আমার কাছে আসতো, আমাকে অনেকে স্যার বলতো, অনেকে দাদা বলতো। আমরা একটা ছোট্ট একটা ফ্যামিলির মতো আমরা থাকতাম মধ্যপ্রদেশ নিমাচে। তারপর সবাই এদিকে সেদিকে চলে গেছে, অনেক রিটায়ার চলে গেছে, অনেকে ফুটবল ছেড়ে দিয়েছে। আমিও এখন অবসরপ্রাপ্ত এক্স ডিআইসি হয়ে গেছি। আমার বাড়ি আগরতলা, কিন্তু এখানে আমার সল্টলেকে একটা ফ্ল্যাট আছে, এখানেও থাকি। এই জন্য আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল যে এক্স প্যারামিলিটারি আর্মড ফোর্সের আমি চেয়ারম্যান আছি। সেটা আমাকে এই যে অসীম দেবনাথ সে প্রপোজ করে, সে আমাকে এই পদ দিয়েছে, এই জন্য ওদেরকে ধন্যবাদ। সেন্ট্রাল ফুটবল টিম যেটা অর্গানাইজ করছে এই আজকের পিকনিক, প্রথম এখানে আমি এসে একটু এত সুন্দর পরিবেশ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। ওরা সবাইকে নিয়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের তো আছেই, বাইরের থেকে ওরা সবাইকে এনে একত্র করে এত সুন্দর একটা পিকনিক অর্গানাইজেশন করেছে, সেটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। তবে প্রত্যেকবারই করবেন, আমিও আশা করি প্রত্যেকবারই আসবো। আর বেশি কিছু বলছি না, এখানে অনেক অনুষ্ঠান, আমার খুবই ভালো লাগছে। আপনাদেরকে সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা বরণ করে নেব স্যারকে এই মুহূর্তে। রেসপেক্টেড বলরাম সিং স্যারকে বরণ করে নেবেন উত্তরীয় পড়িয়ে আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার, রেসপেক্টেড তাপস রং স্যার উত্তরীয় পড়িয়ে বরণ করে নেবেন। করতালির ঝড় চলতে থাকুক, এই বায়োলজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা বাজলে না এই ধরনের ফেলিসিটেশন পার্টটা দারুণ সুন্দর হয়ে ওঠে। हमारे बल थे असम राइफल और सीआरपी, बाकी सब बाद में सीआरपी से बीएसएफ बनी, बीएसएफ से आईटीबीपी। तो आप ये ना सोचे कि आप किसी तरह से कम है, आपका योगदान भी बड़ा है, आपका नाम भी बड़ा है, आपका कार्य भी बड़ा है, और अब आपके अधिकारों के लिए लड़ाई भी बड़ी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी हमारे भाई है, और सेंट्रल से अभी जो अपने लोगों का अधिकार लेना है, बाकी ममता बनर्जी के यहाँ डेलीगेशन जो जाएगा उसमें भी आप जाएंगे। नाम में कल दे दूंगा जब मैं आपको देना। সরি, সিএপিএফ এর প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল তুলে দিলেন স্মারক আমাদের। ধন্যবাদ সবাইকে।
सर आप आज यहाँ पे एकत्रित हुआ है खड़दा भाषा उद्यान में, आप लोग पूरा एक्स CRPF का आदमी हैं, तो यहाँ पे किस लिए आप लोग एकत्रित हुआ है? आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो एक्स सदस्य है उनका द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग प्लस पिकनिक प्लस संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसलिए बहुत सारे जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एक्स फैमिली है वो बच्चों के समेत सभी एक यहाँ इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर बहुत सुंदर पिकनिक का आयोजन किया, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है और इसमें सभी इकट्ठा हुआ। और इकट्ठा होने का मतलब है कि साल में यहाँ पर हर साल इकट्ठा होते हैं और जो हमारा समस्या है, जो हमारा कुछ कहना है, यहाँ पर हम उसको आलोचना करते हैं। उसके बाद कुछ समस्या को समाधान करने का हम कोशिश करते हैं और यहाँ पर सभी एक मिलने का भी अवसर है। जो फोर्स के लोग अलग अलग रहते हैं तो इसी मंच पे आके सब इकट्ठा होके हम एक दूसरे को बारे में सोचते जानते हैं, समस्या को दूर करने का कोशिश करते हैं। किरण जी, आप लोगों का तो बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है। आप लोगों का मुख्य मांग था CCS रूल। CCS रूल का आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी मुख्य मांग CCS रूल ये है कि सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लेके आई, उसका एक ही उद्देश्य हुआ। उस टाइम लोग जागरूक नहीं हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी सिविल सर्विसेज है सबकी पेंशन बंद कर दो, सिर्फ डिफेंस पर्सनल को छोड़ के। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि थे, जो उनके सलाह देने वाले थे 2004 में, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि 49 में जो आर्टिकल 246 है उसके आधार पर ये जो CAPF है ये सेंट्रल यूनियन आर्मर्ड फोर्सेस है, यानी आर्मी के ही प्रतिभाग है। तो हमको रूल नहीं दिया उस टाइम और हमको CCS रूल में डाल दिया। लेकिन एक बात बताइए कि जो लोग 8 घंटा CCS रूल में, चाहे टीचर हो, चाहे अदर सिविल सर्विस हो, चाहे बैंक हो, वो सब 8 घंटा काम करते हैं। तो क्या पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान हमारा ITBP का खड़ा है या BSF का जवान यहाँ कर रहा है वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है? अगर हम 8 घंटा ड्यूटी करके घर जाएंगे तो क्या सीमाओं की रक्षा हो सकेगी? हम 8 घंटा की ड्यूटी नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे लोग तो इस देश को सुरक्षा देते हुए अपना बलिदान दे देते हैं। NPS 2024 में कहाँ जाएंगे ये लड़के? ये CCS रूल की ही तो मार से हमारा सब कुछ हुआ है। मैं गृह मंत्री जी को इसमें प्रथम पॉइंट दे चुका हूँ, लिख चुका हूँ, उनसे चर्चा हुई है कि सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज रूल को हटाइए। वहाँ किसी ने लिख दिया कि भाई ये तो सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये तो सिविलियन है, आप हमको सिविलियन कह सकते हो? हमने पुलवामा में शहादत दी, हमने दंतेवाड़ा में 76 जवानों को खो दिया, हमारी 36,000 की से ज़्यादा की शहादत है इस देश में, जब से इस देश में आज़ादी हुई है। बलिदान है हमारा, और हमारे बलिदान को सिविल सर्विसेज और शहीद का दर्जा नहीं देना ये अच्छी बात नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले वर्ष असम राइफल्स में एक एम्बुश हुआ, वहाँ पे कर्नल साहब शहीद हुए और 6 हमारे जवान हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्रालय से कि कर्नल साहब को तो शहीद का दर्जा मिला है, अच्छी बात है, लेकिन क्या जो 6 जवान शहीद हुए थे कर्नल साहब के साथ में, उनको शहीद का दर्जा मिला? नहीं मिला, क्योंकि वो सिविलियन है। हम इस बात के लिए लड़ेंगे, सरकार से रख रहे हैं इस बात को, और माननीय न्यायालय पे भी हमें विश्वास है और हम रोड पे भी इस बात को लड़ेंगे। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब, आपको शहीद होने के बाद भी शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है आपको? नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। बताते हैं ये लोग कि शहीद की कोई डेफिनेशन नहीं है। हमने तो शहादत को भी बलिदान कहो या कुछ कहो, लेकिन ये कहते हैं कि इसका नहीं है, लेकिन डेफिनेशन नहीं है तो उसका एक कार्ड बनता है कि भाई ये बैटल ग्राउंड में शहीद हुआ, ये जैसे हुआ, उससे पेट्रोल पंप मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, हमारे जवान को कुछ नहीं मिलता। गिना दीजिए मुझे जो पुलवामा में शहीद हुए, अगर गवर्नमेंट ने उनको ये सब शहीद के दर्जे में दिया है तो। हम ये लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इसको हम। आपका नाम? मेरा नाम किरणपाल सिंह है और मैं संगठन मुख्य संयोजक चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम किरणपाल सिंह है, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का। और इससे आगे अगर आपको कोई पूछना है तो पूछिए।